Hello guys, today we are going to talk about this fraud builder Ganga Realty. So I'm going to explain everything and then you guys decide whether it's fraud or not. Now, yeah, I would personally recommend not to buy anything from them and not to buy at least these cancelled units, mass cancellation units. And you can cross verify the units in which they are allotting at a premium from going to this ETCP website, and there you will get a winner list. So there you can go here and type the task and go to the initial March draw of 2023 where they have winner list. Okay, so you can cross verify from here. All right, now this project was launched under TCP Haryana affordable housing scheme, and the initial draw was conducted from here. So I don't know why they split it into two projects, 1 and 2. So one has I think 8 towers and 2 has around 6 towers. Let's see details of draw. So this amount was collected in the start before the draw itself. So those who were successful would have to only pay the remaining of these. So if you are successful, you have to pay 20% more within due date. Then on substructure completion, 12.5%. And this was around, this demand was raised in I think August 2023. Now the disputed one is this 1/3 slab of superstructure, 1/3 superstructure. This was raised in March 2024, but the construction wasn't done. Okay, here you can see the demand. So on completion of 1/3 superstructure, so this was raised around like total amount. This was raised on 15 March. Okay, due date is, and construction was to be done. This construction for supposedly this construction they were raising this demand. All right. So when they raised it, okay, we replied, the concerned party replied that to release the construction proof, then they'll release the fund, to which they asked them to go to the link. So in Haryana Affordable, they have to submit quarterly reports to both RERA and on their website. Okay, so when we go to this report, all right, for the task to do, let's see. Tower 1, nothing, right? No superstructure. Tower 2, no superstructure. Tower 3, 3 floors. Okay. Tower 4, nothing basically, not even 1 floor. Tower 5, one floor. Okay. Tower 6, nothing. So 1 floor and 3 floors and yeah, that's it. 1 floor and 3 floors, that's it. And for 1/3 superstructure, they have to complete how many? Like total is around like minimum 20 per tower, right? So for project as a whole, they have to complete like in all 6, they have to build at least like 6 to 7 floors in all of these towers, right? Or like we can say that if total, like in total for project as a whole, they have to build around 36 floors. But if here we count, it's just 3 plus nothing 3 plus 1, 4. That's it, right? Just 4.
and yeah, 3 also. Like if we take 3, then 7. So they did not even do like 1/4 of the, suppose that really this 1/3 superstructure would be 36 minimum, right? For 6 towers, because it's 6 into 6, right? And 6 is 20/3, then it's 1/3 superstructure. Okay. So for that, and they did the demand, all right. And now the problem with this, like, why are they, now we have to get into why are they doing this. So Haryana government raised 20% in total tax. Like Haryana government increased the flat prices of these affordable units by 20%. Okay. And I would say they are kind of stupid that they allowed this for old builders as well. अगर पुराने बिल्डर्स को, मतलब उन लोग कंस्ट्रक्शन डेट से कर देते ना कि इस दिन का ड्रॉ रहेगा, उसके बाद ही जो नई यूनिट्स आएंगी, जैसे उन्होंने इसके ये जब ड्रॉ था, देन दे वर दिस 3800, राइट? अब ये 4500 हो गया है रेट पर स्क्वायर फीट। तो इसके चक्कर में बिल्डर ये सब फ्रॉड कर रहा है। अगर गवर्नमेंट बोलती कि मतलब जो पुराने ड्रॉ हो चुके हैं, वो वाले फ्लैट्स अगर कैंसिल भी होंगे तो नए रेट उसमें नहीं लगेगा, तो दे वुडेंट, दिस बिल्डर वुडेंट डेयर कैंसिल एनी यूनिट्स, राइट? और बट इन्होंने जो कि बोला है, तो ये कैंसिल कर रहे हैं इस तरह से। अब और इन लोग कुछ भी, मतलब देखो, आप सोचोगे कि यू विल कवर्ड बाय दिस टीसीपी गाइज विल हेल्प यू, दे वॉन्ट हेल्प यू। कोई कुछ रिस्पांस नहीं करेगा, चाहे आप एच रेरा के सेक्रेटरी को ईमेल करो, किसको भी करो, कोई कुछ नहीं रिस्पांस करने वाला। देख लो, इन्होंने किसी में कुछ रिस्पांस नहीं किया। अब इंजीनियर सर्टिफिकेट मांगा गया इन लोग से, ठीक है? इंजीनियर सर्टिफिकेट मांगा गया, तो ये बुलशिट अपना देने लगे कि मिस हैपनिंग एंड एनयूएच ये है, स्टॉप्ड है। हम लोग का डिमांड लेटर तो हम लोग का सही टाइम पे है, बट कंस्ट्रक्शन वाज स्टॉप्ड। ओके, तो ऑफिस आ जाइए। ऑफिस क्यों आए भैया? ठीक, सो इट डजंट, ये प्रतीक जी ने भी करेक्ट रिप्लाई किया है कि इट डजंट मैटर इफ प्रोजेक्ट इज ऑन टाइम। आपने डिमांड नोटिस क्यों रेज किया? कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है, तो आप वो करिए। और फिर नील सर्टिफिकेट मांगा गया, तो कुछ नहीं, बुलशिट पूरा है इनका, ठीक है? और ये अप्रैल के एंड में इन्होंने अग्री भी किया था कि जो है कंस्ट्रक्शन ठीक है, नहीं है, जब हो जाएगा तब डिमांड फिर से किया जाएगा। बट बहुत लोग, 3000 लोग हैं इस फ्लैट में, एंड मोस्ट ऑफ देम पे। फिर बैंक्स को भी प्रॉफिट कमाना होता है, दे ऑल्सो पे। इंटरेस्ट तो आपसे चार्ज कर रहे हो ना, बायर से। तो इन्होंने फिर ये मास कैंसिलेशन कर दिया, ठीक? ये इन्होंने 30 यूनिट्स तथास्तु 1 में कैंसिल करी है, सेम मतलब बेस्ड ऑन फेक डिमांड लेटर्स, राइट? और क्योंकि तथास्तु 1 का भी मैं दिखाता हूँ, ये देखो, तथास्तु 1 का दिखाता हूँ, उसमें 8 टावर हैं। ये देखो, कुछ नहीं, फर्स्ट फ्लोर है, कुछ नहीं, 40%। प्लिंथ बीम है इसमें कुछ नहीं। ये है 4 फ्लोर्स, इसमें 6 फ्लोर्स, ठीक है? 6 फ्लोर, 4 फ्लोर, मतलब 10 फ्लोर टोटल करके, और 8 फ्लोर्स हैं, मतलब 8 टावर हैं। तो इनका टोटल कितना होना चाहिए? 8 इंटू 6 ना, मतलब 42 लगभग होने चाहिए। और 10 किए हुए, मतलब 1/4 ऑफ 1/3 सुपरस्ट्रक्चर, और उसकी भी डिमांड इन लोग ने रेज करी है। तो इन्होंने मतलब फेक, मतलब उल्लू बना रहे हैं सब बाहर लोग को, ठीक? अब देखो, इन लोग 27 लोग का इन्होंने इसमें तथास्तु 2 में कैंसिल किया है।
अच्छा, और ये जो फाइनल था, ये तो ऐसे तो रिमाइंडर इन लोग भेजते थे, ये वाला जब किया पेपर का तो इन्होंने रिमाइंडर नहीं भेजा। फिर जब ये जो ड्यू डेट ख़त्म हो गया ना, उसके बाद जैसे ड्यू डेट इनका क्या है, 7 दिन बोला गया है ना, 5 तारीख से 7 दिन, तो वो हो गया 12 तारीख, 12 अगस्त। तो उसके बाद इन लोग ने 13 अगस्त को आपको भेजा कि हाँ आपका कैंसिल हो चुका है। ठीक। अब अब इनका मतलब अब हम लोग को तो इन लोग वो कर रहे हैं कि हाँ आप लोग इंजीनियर तो हो नहीं। ठीक। तो ठीक है, तो व्हाट वी डिड वाज गेट a third party civil engineer to confirm that 1/3 superstructure wasn't done at the time of the demand. इवन उन लोग उसके एक दिन मतलब 1 महीने आगे का भी ले लिया हम लोग ने। इन लोग का कंस्ट्रक्शन अपडेट आया हुआ था, ठीक है, अप्रैल में, राइट, दिस वन। अब देखो, इससे हम लोग ने निकाला ये देखो, ये है आया इनका, इसमें कुछ कुछ बढ़ भी गए थे, लेकिन खैर ये तो मार्च से लेना चाहिए था। चलो हम लोग ने थोड़ा और ही इनका बता दिया कि हाँ चलो थोड़ा सा 1 महीने का इनको और दे दिया। तो ये देखो, टावर 1 0% कम्प्लीट, 0। अच्छा, ये पूरा सिविल इंजीनियर ने बना के दिया है, ठीक, 0%, 0%, 35%, ठीक है। तो ये चलो टावर 3 थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक, टावर 4 35, टावर 5 5%, ओके। तो टोटल अगर दिखा जाए फॉर प्रोजेक्ट एज अ होल सिर्फ 12.5%। अच्छा, 1/3 कितना हुआ, 33.33, राइट, मतलब उसका 1/3 इन लोगों ने लगभग किया है, करेक्ट। और इनका कैलकुलेशन का वो भी देख लो, ये एक्सेल से इन लोग ने कैलकुलेट करा हुआ, ठीक। अब देखो, ये हो गया। अच्छा, इनके अब ये देख लेते हैं डायरेक्टर्स वगैरह। तो ये इनके मेन शेयर होल्डर हैं, ये पहले एमआरजी में थे, ठीक। आई थिंक ये इनका वो देखते हैं, रेरा वगैरह देखते हैं, अदर्स आई डोंट नो। नाउ इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन कौन है, मतलब गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट बस टैक्स के लिए है क्या, कि मतलब आपका जब कंप्लीट हो जाए तो 8% 9% जो भी इनका लगता है वो आप दे दो। गवर्नमेंट को लगातार ईमेल किया जा रहा है, वाई आर दे नॉट आस्किंग देम टू डू एज पर प्लान, राइट, एज पर कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान। कुछ नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से जीरो सपोर्ट है, राइट। अच्छा, इसके लिए अब रेरा कोड तो जा ही रहे हैं हम लोग, बट देखते हैं कैसे है। मुझे तो है कि भाई और जितने लोग हैं, ये जितने लोग हैं, ठीक है, इन लोग भी मिल के चाहे जाएं, चाहे इंडिविजुअल भी जाएं, मिल के भी जाएं। एंड जिन लोग ने पे कर रखा है, मतलब बाकी लोग ने पे कर दिया होगा, 3,000 लोग करीब थे, उन लोग ने पे कर रखा होगा, तो उनके साथ भी तो फ्रॉड हो रहा है कि उनको पूरा 1 साल का 1 साल पहले अगर किसी ने डिमांड रेज कर दिया तो आपका बैंक इंटरेस्ट जा रहा है पूरा। तो दे शुड ऑल्सो फाइट इन रेरा टू गेट दैट मनी बैक, लाइक पूरा डिमांड वापस होना चाहिए कायदे से, एंड देन डिमांड वापस हो, फिर इंटरेस्ट जितना इन लोग ने दे दिया बैंक को वो वापस। अब बैंक भी रिलीज कर देता है फंड्स, वो देखता है मंथ ओवर मंथ देखेगा, वो जाएगा कि हाँ, देखेगा कि हाँ अगस्त का है, जून का है, ठीक है, तो वो धीरे धीरे करके आपका रिलीज कर देता है फंड, क्योंकि दे ऑल्सो वांट टू मेक प्रॉफिट, राइट। बट असल में क्या है, मतलब आपको क्या करना चाहिए, मतलब आपको फाइट तो अपने राइट्स के लिए करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि गवर्नमेंट तो फाइट, मतलब नॉर्मली क्या होता है, अगर गवर्नमेंट मतलब सतर्क रहती, मतलब या तो गवर्नमेंट खुद अपॉइंट करे, एक सिविल इंजीनियर को अपॉइंट करे कि हाँ जब इनका कंप्लीट हो तो उस हिसाब से आप करो। 3,000 लोग हैं भाई, सब लोग को इन लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं, कैंसिल कर देंगे किसी का, मतलब पता नहीं क्या क्या बेच के, गांव बेच के, ज़मीन बेच के कुछ, या एकदम मेहनत की कमाई से आदमी इसमें डाला होगा पैसे, ठीक है, और पूरे सपने उसके तोड़ देंगे। कई लोग तो 20 साल वाले हैं, जो कि फर्स्ट प्रॉपर्टी इनकी लोग की थी, कई लोग की मतलब हो सकता है 60 ईयर्स में फर्स्ट प्रॉपर्टी रही हो इसमें, है ना। तो अच्छा, आप लोग से क्या है कि आप लोग लॉयर के लिए, इनका मैं क्यूआर डाल दूंगा ना, इनका
तो आप लोग अगर देना मतलब कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहें तो कर सकते हैं, इफ़ यू वांट टू हेल्प टुवर्ड्स लॉयर फीस, ओके। एंड मेन तो भाई ये है कि गवर्नमेंट शुड अपॉइंट अ सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट इंडिपेंडेंट फ्रॉम द, तो उसको गवर्नमेंट सैलरी दे, क्योंकि गवर्नमेंट का काम क्या है, सिर्फ टैक्स कलेक्ट करना है क्या? ये देखो सब में टैक्स कलेक्ट कर रही है ना, और 3,000 लोग से कर रही है इतना, तो 9 लाख रुपए जा रहा है ना गवर्नमेंट को। तो क्या ये 9 लाख रुपए में मतलब एक ही डिमांड पे बेसिस पे जा रहा है? इसको अगर आप 3,000 से मल्टीप्लाई करो तो उतने में वो एक सिविल इंजीनियर नहीं हायर कर सकती है, जो कि इन हम ही लोग की मतलब राइट्स प्रोटेक्ट करे, हम ही लोग की राइट्स प्रोटेक्ट करे जो बायर है। तो चलिए ठीक है, आप लोग डिसाइड करिए कि ये क्या फ्रॉड है कि नहीं है। इनकी अभी भी लग्जरी काफ़ी आ रही है अपार्टमेंट, उसमें आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आप लोग डिसाइड कर लो। ये देखो लग्जरी में बहुत सारी इनकी आ रही है, उसमें भी इन लोग यही करेंगे, पूरा पैसा आपसे ले लेंगे एंड फिर पता नहीं बनाए ना बनाए, या बना भी दें तब भी आपका इंटरेस्ट में खा गए इन लोग, पूरा रिस्क आपके ऊपर रख दिया, अपने ऊपर कोई रिस्क भी नहीं, जरा भी रिस्क नहीं है। ये देखो अभी इनकी 84 में आ रही थी ना, बहुत सारे यूट्यूबर्स डाल लेते इसमें, ये आ रही है कुछ कुछ इसमें। तो यू गाइस डिसाइड। चलो।